ના ના હવે નથી આવતું. ઓકે, તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. મંગલાચરણથી હવે તમે સ્ક્રીન શેર ચાલુ કરશો. सभी लोग हाथ जोड़ ले. नमो सिद्धाण नमो वज्रायाण नमो लोई गौतमो गणी मंगलम जैन धर्मो मंगलम. स्क्रीन शेयर आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला पर अपना स्वाध्याय चल रहा है. तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कैसे पर्याय एक के बाद एक यानी क्रमबद्ध होती है. तो कई बार लोग ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्रमबद्ध ही होता है तो फिर इसमें पुरुषार्थ कहाँ पे आए. तो इसीलिए आज मैंने एक वीडियो रखा है. बेसिकली आज सुबह धर्म संदेश चैनल पे माता जी का जब तत्व चर्चा चली थी तब उन्होंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था. तो इसलिए वो वीडियो अपन पहले एक बार देखेंगे. माता जी का वीडियो क्योंकि कोई ऐसा स्वच्छंदी ना हो जाए कि जब क्रमबद्ध है तो इसमें पुरुषार्थ क्या हुआ, क्या करने को रहा. तो इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखिए. તમે શેર સ્ક્રીન કરે ઓડિયો શેર કર્યું હતું. શેર સ્ક્રીન કરે ઓડિયો શેર કર્યું હતું. સ્થિતિ હોય છે પણ પુરુષાર્થ સાથે સંબંધ હોય છે. પોતે પુરુષાર્થ કરે એ વિદ્યાર્થી ભાવ સ્થિતિ પોઝ કરવું પડશે. પોતે એમ પણ આવે છે અને ભવસ્થિતિ તમે ક્રમબદ્ધ બધું છે ત્રણેયનો કઈ રીતે માતાજી ભવસ્થિતિ આદિ નામ લે છેદો નહીં પુરુષાર્થ. પુરુષાર્થની ભવસ્થિતિ હોય છે પણ એ પુરુષાર્થ સાથે સંબંધ હોય છે. પોતે પુરુષાર્થ કરે એવી જાતની ભવસ્થિતિ હોય છે. પોતે તું પુરુષાર્થ કર પછી ભાવસ્થિતિનું નામ શું કામ લેવાનું હોય. ભાવસ્થિતિનું નામ માત્ર લે છે. ભાવસ્થિતિનું નામ લઈને પોતે બચાવ કરે છે. પુરુષાર્થ કરવું નથી. એટલે ભવસ્થિતિ કાળ લબ્ધિ પાકવાની હશે ત્યારે થશે. એમ એનો બચાવ શું કામ કરે. તું પુરુષાર્થ કર. જો તારે પુરુષાર્થ આત્માની તને પડી હોય, જો તારે પરમાર્થ સ્વરૂપ એવું આત્માને પ્રગટ કરવું હોય આત્માને, તો તું પુરુષાર્થ કર. પુરુષાર્થ કર યથાર્થપણે. પછી થાય છે કે નહીં, તું જો થયા વગર રહેશે જ નહીં. પુરુષાર્થ સાથે ભાવ સ્થિતિને ક્રમબદ્ધને બધાને સંબંધ હોય છે.
જેવો પોતાનો પુરુષાર્થ એ જાતનું ક્રમબદ્ધ હોય છે, બરાબર. એવી જાતની ભાવસ્થિતિ હોય છે. હાજી. અને એ ભાવસ્થિતિ બદલાઈ જાય છે જી. જો તું પુરુષાર્થ કરતો. બરાબર. એમ કર્મ હશે એમ થશે, કર્મ ઉદયમાં આવે એવી કાળ અવધિ પાકી નથી, ઉદય એવા છે એ થઈ શકતું નથી, જી. એવા બધા બચાવો કરે તને અંદર લાગી નથી. બરાબર. જો આત્માની લગ્ની લાગી હોય તો તને પુરુષાર્થ ઉપર જ, તને પુરુષાર્થ તરફ જ તારું વલણ જાય જી. કે હું પુરુષાર્થ કરું. આવું કાંઈ હોય કે પોતે પુરુષાર્થને ઈચ્છે, પોતે આત્માને ઈચ્છે જી. અને થાય નહીં, એવું તો બને નહીં. એવું તો આત્મા, દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે, બરાબર. તો આત્મા પરાધીન થઈ જાય એવું નથી. જી. પુરુષાર્થ કરે તે જ પ્રમાણે ભાવસ્થિતિ હોય, જી. તે જ પ્રમાણે ક્રમબદ્ધ હોય, બધું એમ જ હોય. બરાબર. એ પુરુષાર્થ સાથે સંબંધ છે બધાય. કરવું એ મરવું એટલે તું પર પદાર્થનો કરતા નથી, જી. હા. તું જ્ઞાતા છો. જી. તો કોઈ પદાર્થને ફેરવવાની તારામાં શક્તિ નથી. બરાબર. તું તો જ્ઞાતા છું એમ, એનો અર્થ એમ છે કે તું પુરુષાર્થ ન કરે એવો અર્થ નથી. બરાબર. બરાબર. એમ. નાયક જ્યાં થાય છે ત્યાં જ પુરુષાર્થ આવી જાય છે. હાજી. હાજી. અનાદિનું જે કર્તા બુદ્ધિ હતી તોડીને જ્યાં નાયક થયું, જી. હા. એ જ્ઞાતાપણું જ્યાં આવી ગયું, જ્ઞાતા ધારા પ્રગટ થઈ ગઈ, તો પુરુષાર્થથી જ થાય છે. એ કઈ પુરુષાર્થ વગર થતું નથી. બરાબર. એ કઈ કરતા બુદ્ધિ એટલે તું પુરુષાર્થ ન કરે એવો એનો અર્થ નથી. બરાબર. કરવું તે મરવું એટલે તું પર પદાર્થનો કરતા નથી, તું વિભાવનો કરતા અજ્ઞાન અવસ્થાએ છો. વિભાવ જ્ઞાન અવસ્થાએ નથી. જી. હા. પણ તું જ્ઞાતા થઈ જાય એમાં પુરુષાર્થ આવી જ જાય છે. બરાબર. તું અંતર જ્ઞાતાનો પુરુષાર્થ કર, જી. હા. અંદર લીનતાનો જ્ઞાતા થઈ જાય, લીનતાનો પુરુષાર્થ કર, તે જ પ્રમાણે રાગ ને વિભાવ પર્યાય એ બધી તે જ પ્રમાણે થવાની છે. જી. તું એને ફેરવી શકતો નથી એટલે તું જ્ઞાતા થઈ જાય. બરાબર. પર ઉપરથી દ્રષ્ટિ છોડી દે અને તો સ્વ ઉપર દ્રષ્ટિ મૂક જી. અને નાયક થઈ જા. પછી જેમ થવાનું એમ થાય. તો એ ફેરફારો એને સ્વયં થાય છે. બરાબર. બરાબર. તું નાયકની દ્રષ્ટિ કર, તું જ્ઞાતા દ્વારા પ્રગટ કર, જી. હા. તું અંદર સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર જી. હા. બધું પ્રગટ કરવામાં તું સ્વાધીન છો. બરાબર. એ બધું પર પદાર્થને ફેરવવાની તારામાં શક્તિ નથી. જી. હા. પણ એવો સંબંધ છે કે તું જો જ્ઞાતા થા તો એ સ્વયં એમાં પલટો થાય છે. બરાબર. કર્મનો પલટો થાય છે, વિભાવ ઉદયનો પલટો થાય છે, જી. બધોય પલટો થાય છે. બરાબર. એને નાયકની ધારા સાથે સંબંધ છે. જી. તારે જ્ઞાતા થવું નથી અને પછી તું બચાવ કર્યા કરે છે કે આવા ઉદય છે. બરાબર. ઉદય પલટ્યા વગર રહેશે જ નહીં. તું નાયક થા એટલે સ્વયં બધા ઉદયો પલટી જશે. માતાજીની અમૃત हाँ, तो अभी हमने माताजी की वीडियो में ये देखा कि बेसिकली जो क्रमबद्ध है उसके साथ पुरुषार्थ होता ही है। हमें ऐसा स्वच्छंदी और ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रमबद्ध ही है सब कुछ तो फिर पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ कैसे चलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर ज्ञाता पढ़े का पुरुषार्थ करोगे तो ऑटोमेटिक क्रमबद्ध भी आपका ऐसा ही रहेगा कि फ्यूचर में आपको मोक्ष होगा। तो इस प्रकार पुरुषार्थ और जो क्रमबद्ध पर्याय है उसके साथ संबंध है। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। बाहर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जो चीज होने वाली है वैसे ही होने वाली है। लेकिन अपने खुद आत्मा में अगर अपन समझे कि उत्पाद व्यय जो है क्रमबद्ध है तो उसमें मैं क्या करूँ, लेकिन तेरा पुरुषार्थ उस तरफ होना चाहिए कि पर में मैं कुछ कर नहीं सकता। तो जो एकत्व ममत्व बुद्धि है वो पर के साथ टूटनी चाहिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि टूटनी चाहिए और फिर अपने ज्ञाता के साथ एकत्व ममत्व कर्तृत्व होना चाहिए। तो बेसिकली यही पुरुषार्थ है, ज्ञाता पढ़े रहना ही पुरुषार्थ है। और उसके जब वो पुरुषार्थ रहता है तब क्रमबद्ध में मोक्ष ही होता है। तो ये हमने अभी माता जी की वीडियो से ये देखा। अब अपन प्रीवियस क्लास का रिवीजन से शुरू करते। तो प्रीवियस क्लास में किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था? अगर अपन जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला का वो पीडीएफ खोलेंगे तो हमने बेसिकली देखा था कि जो वृक्ष है, हमने एक वृक्ष के एग्जाम्पल से देखा था कि जो बीज होता है, जो अंकुर होता है,
जो वृक्षत्व होता है वो तीनों वृक्ष के अंश है और वो तीनों मिला के एक वृक्ष अंशी है। ऐसे ही उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों आत्मा का लक्षण है। और कौन से भी द्रव्य का भी ले सकते हैं, तो कौन से भी द्रव्य का ये तीन लक्षण होता है, तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत। तो सत मतलब अस्तित्व, तो मतलब किसी भी चीज का जो अस्तित्व होता है उसका ये तीनों उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता ही है। उसके बाद हमने ये भी दिखा था पिछले क्लास में कि जो ध्रुव है वह अंश है, वो अंशी नहीं है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाता है कि द्रव्य इज इक्वल टू ध्रुव, ऐसा नहीं है। ध्रुव है वो अंशी है, उत्पाद भी अंशी है, व्यय भी अंशी है, व्यय भी अंश है, उत्पाद भी अंश है, व्यय भी अंश है, ध्रुव भी अंश है, और जो द्रव्य है वो अंशी है। तो ये ध्रुव और द्रव्य के बीच में जो भेद है वो हमें समझना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा था कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य से दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, मतलब वो तीनों मिलाकर ही पदार्थ है, उससे भी देयर इज नथिंग एल्स, तो वो एक द्रव्य ही है। तो उसके बारे में भी आज एक वीडियो आया था टुडे लाइक मॉर्निंग, जब धर्म संदेश के चैनल में गुरुदेव श्री की जब प्रवचन चला था, तो उन्होंने प्रवचन सार जी में ये बताया है कि हमने अगर समझो उत्पाद, व्यय और ध्रुव समझ लिया, लेकिन इससे हमको अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो कैसे करें? बिकॉज टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि देयर इज परमानेंसी विद चेंज, लेकिन अगर हमको सम्यक दर्शन करना है तो इस उत्पाद, व्यय, द्रव्य स्वरूप को समझकर कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करें, तो वो अपन गुरुदेव श्री का एक वीडियो है, वो अपन एक बार देखते हैं। हाँ, मुझे गुरुदेव श्री का वीडियो। चलो देखो, जो उत्पाद और व्यय होता है इट्स बेसिकली पर्याय। तो पर्याय हमेशा पलटती रहती है, अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो तो चेंज होती रहेगी, तो आपका फोकस भी चेंज होता रहेगा। एंड वो तो हम अनादि से वैसे भी करते आए ही रहे, इसलिए हमको पर्याय दृष्टि ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव वो बोल रहे हैं कि जो उत्पाद व्यय है उस पे अपन को कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है, उस पे अपन को दृष्टि नहीं रखना है, उसकी अपनी प्रतीति नहीं करना है, लेकिन ध्रुव पर करना है। हाँ, देखो, जब अपन बोलते हैं ना कि द्रव्य दृष्टि ही सम्यक दृष्टि, तो वहां द्रव्य शब्द का अर्थ होता है ध्रुव। तो उत्पाद व्यय में जो ध्रुव पार्ट है ना, जो कांस्टेंट पार्ट है, जो परमानेंट पार्ट है, जो त्रिकाली पार्ट है, जो शुद्ध पार्ट है, उस पर धर्मी की जो दृष्टि होती है वहां पे स्थापित होती है, इसीलिए उनको सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि राइट है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल स्वरूप। अगर जैसे अपन एग्जाम्पल में ले कि गोल्ड है, तो गोल्ड की अलग अलग पर्याय होती है, राइट? जैसे कि कुंडल हो या इयररिंग्स हो या जो भी अलग अलग पर्याय हो, तो उन सभी पर्याय को दैट इज नॉट गोल्ड,
गोल्ड इज द एक्चुअल द्रव्य स्वरूप। जब अपन खरीदने जाते हैं तो अपन मिलता तो पर्याय के रूप में ही है, लेकिन एक्चुअली जो है वो अपन को वैल्यू किसकी होती है, गोल्ड की होती है। वैसे द्रव्य की वैल्यू है, पर्याय तो भले होगी, कुछ ना कुछ तो पर्याय अवस्था होती ही रहेगी, लेकिन वैल्यू द्रव्य की है। तो दृष्टि है वो जो त्रिकाली, देखो सोना जो होता है वो त्रिकाली सोना 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 ही रहता है, नो मैटर इन विच एवर पर्याय इट इज इन। वैसे ही जो अपना जो शुद्ध आत्मा है वो आत्मा हर एक पर्याय में, नो मैटर इन वॉट एवर पर्याय इट इज, वो ध्रुव 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 नित्य 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 त्रिकाली शुद्ध ऐसा ही रहता है। तो उसके ऊपर जब दृष्टि करते हैं तो उसको सम्यक दृष्टि। तो आप अभी जैसे कि कोई भी जीव हो तो उसकी पर्याय में कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स हो, तो हमें उसकी प्रॉब्लम्स में ना फोकस करके उसकी करंट अवस्था को देख के ही उसका सर्वस्व नहीं मानना चाहिए। कि जैसे कि अभी किसी की अवस्था थोड़ी हीनी है तो उसको ऐसे समझिए ये हीना है, नहीं, शक्ति रूप से उसमें भगवान बनने की कैपेबिलिटी है। तो वो भले ही अभी कुछ भी उसकी अवस्था हो लेकिन वो बन सकता है, उसके में कैपेबिलिटी है। तो वो जो आपने कैपेबिलिटी की और जो दृष्टि की, जो कांस्टेंट उसकी जो शक्ति है उसके ऊपर दृष्टि की, जो ध्रुवता के ऊपर दृष्टि की, वो द्रव्य दृष्टि है, वो उसी को सम्यक दृष्टि कहती है। तो दिस इज दी की पॉइंट हमारे जैन धर्म का। तो जब अपन द्रव्य दृष्टि, द्रव्य वर्ड इज यूज्ड इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। कभी द्रव्य को टोटल मतलब टोटल द्रव्य, टोटल वस्तु मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य, इस टोटल कंप्लीट को मिला के भी द्रव्य कहते हैं। और जब यहाँ द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि है तो यहाँ सिर्फ ध्रुव पार्ट को कहा है कि ध्रुव पार्ट को जब आप देखो जो कांस्टेंट है, क्योंकि ओनली यू कैन फोकस ऑन दी ध्रुव पार्ट, देन ओनली वो टिक सकता है, राइट। इफ यू कांस्टेंटली फोकसिंग ऑन द पर्याय पार्ट वो आपका टिक नहीं सकता। और वैसे भी जो वस्तु है एज ए वस्तु, एज ए थिंग, जैसे गोल्ड है तो थिंग, गोल्ड तो त्रिकाली है ही है ना, नो मैटर वॉट एवर अवस्था में है तो वो तो त्रिकाली नित्य है। तो उसके ऊपर जो ध्रुव पार्ट है उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उस हर एक चीज को आपको जो एक्सरे विजन है, वो दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो आप उस तरह से देखेंगे, दुनिया को द्रव्य रूप से देखेंगे, तो आपको जो दृष्टि होगी वो समय दृष्टि होगी। तो क्योंकि हमने उत्पाद व्यय द्रव्य पढ़ा इतना डिटेल से और अगर हमने ये पार्ट डिस्कस नहीं किया होता तो ये अधूरा रह जाता, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। फिर अपन गोइंग बैक टू अपन जैन सिद्धांत प्रश्न उत्तर माला में, फिर पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो सत्य है वह अनेकांत है, मतलब जो त्रिकाली अपेक्षा है वो नित्य है और पर्याय अपेक्षा वही अनित्य है। तो मतलब कथनचित नित्य कथनचित अनित्य, वो हमने सत्य का अनेकांत स्वरूप देखा था। फिर हमने पर्याय का अनेकांत स्वरूप देखा था कि जो उत्पाद होता है वो स्व से होता है, खुद से होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, मतलब उसको पर से अपेक्षा नहीं है, मतलब उत्पाद में स्व से होता है, पर से नहीं होता। तो ये पर्याय का अनेकांत है, जैसे अभी ज्ञान की पर्याय होती है। तो हमारी जो ज्ञान की पर्याय है जो हम जानते हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि ये वस्तु है इसलिए हम जानते हैं, हमारे में वो खुद में वो कैपेबिलिटी है कि वो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो वो उसका खुद का वो स्व से होता है, पर से नहीं होता है, ऐसी वो पर्याय की अनेकांत स्वरूप है। फिर हमने लास्ट में ये भी देखा था कि जो धर्म है उसको प्रकट करने के लिए, तो देखो जो सम्यक दर्शन की पर्याय जो प्रकट होती है उसको अपन उत्पाद बोलते हैं, मिथ्यात्व की पर्याय का नाश होते हैं उसको व्यय बोलते हैं। और फिर हमने देखा था कि जो द्रव्य है, हाँ, तो हमारी बात ये चल रही थी कि जीव ने जब सम्यक दर्शन की पर्याय का जब उनका उसका उत्पाद हुआ तो मतलब वहां पे अपन ने उत्पाद शब्द का उपयोग लिया। फिर उसी समय जो विकारी अवस्था है उसका न्यास हुआ, तो वहां पे हमने व्यय व्यय शब्द से उसको बताया। लेकिन दोनों ही अवस्था में जो विकारी या अविकारी अवस्था जो भी थी उसको उस समय द्रव्य जो था, मतलब जो ध्रुव था, वो कायम था, वो कांस्टेंट था दोनों अवस्था में। तो वो हमने लास्ट क्लास में ऐसे देखा था कि हमने उसको ऐसा बताया कि सिंस वो दोनों अवस्था में कांस्टेंट है, वो टिका हुआ है, सो दैट इज इट्स लाभ। आज आदरणीय परेश भाई अंकल का फोन आया था, तो उन्होंने और एक बात बताई कि यहाँ पे अपन लाभ शब्द का और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ध्रुव की प्रसिद्धि हो रही है। देखो, नॉर्मली उत्पाद और व्यय वो तो हमें दिखता है, राइट, लेकिन ध्रुव जो है वो हमें दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हम वृक्ष का एग्जाम्पल ले तो जो बीज है और जो अंकुर है, बीज से अंकुर हुआ तो वो तो हमें दिखता है, लेकिन वृक्षत्व नहीं दिखता है। लेकिन ये जो उत्पाद व्यय है वो ध्रुव को प्रसिद्ध करता है। कैसे? कि देखो, हमने मैंगो का बीज डाला तो मैंगो की ही जो फल आया, राइट? तो वो मैंगो मैंगो दोनों में कॉमन है, मतलब मैंगो का बीज डाला तो मैंगो का ही फल आया। तो वो जो वृक्षत्व है वो कॉमन है। इस प्रकार उत्पाद व्यय जो है वो हमें ध्रुव की द्रव्य की प्रसिद्धि कराता है और वही उसका लाभ है। तो ये हमने अभी तक ये लास्ट क्लास में इतना देखा था। फिर अपन अभी एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में बेसिकली गुरुदेव श्री ने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका बहुत ही अच्छा समराइजेशन उस वीडियो में है। तो अपन वो वीडियो अभी देखते हैं। फिरता एक समय में ठाणे उपजे विंसे तबही उलट पलट ध्रुव सत्ता राखे या हम सुनी न कबही उत्पाद वही राखे ने ध्रुव पण राखे पर्यायમાં ઉત્પાદન છે વસ્તુ પણ જે જે ધ્રુવ છે એ ઉલટ પલટ ध्रुव सत्ता राखे या हम सुनी न कबही अबदू नटनागर की बाजी 14 ब्रह्मांड नो नगर नायक आत्मा नट नट रेमो 4 गति काल इसका ऐसा एक गुण है कि सत द्रव्य लक्षणम। सत का अर्थ ये है कि टिकाव उसमें ध्रुव व्यय उत्पाद सदृश विदृश सदृश नाम ध्रुव विसदृश नाम व्यय उत्पाद ऐसा जिसका स्वभाव है ऐसा सत उसका अस्तित्व उसकी सत्ता का होना ऐसा एक आत्मा में गुण है। उत्पाद वही ध्रुव नामनो पण एक गुण है। पर्यायમાં उत्पाद वही भले थोड़ा હોય પણ એની શક્તિમાં उत्पाद वही ध्रुव नामનો ગુણ છે કે પૂર્ણ છે। એવી ભાવ 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 વર્તમાન પર્યાય છે એ ભાવને કારણે એનો અભાવ થવો એવી પણ એક ભાવ ભાવ નામની શક્તિ છે। તારે તે પર્યાયનો અભાવ કરવો પડે અને ભાવની પર્યાયનો વ્યય કરવો પડે એમ નથી, એ શક્તિ જેવી છે। ભાવ નામનો ગુણ પણ પરિપૂર્ણ છે, અભાવ નામનો ગુણ પણ પરિપૂર્ણ છે, ભાવ ભાવ નામનો ગુણ પણ પરિપૂર્ણ છે। અભાવ ભાવ નામનો પર્યાયમાં જે અભાવ હતો એને ઠેકાણે ભાવ થયો પર્યાયમાં, એવો અભાવ ભાવનો ગુણ આત્મામાં છે। તારે અભાવ કરવો પડે ને ભાવનો વ્યય કરવો પડે એમ નથી કે રાગ ને રાગને જાણનારી જ્ઞાનની પર્યાય એ પર્યાયની સમીપે કરવું બિરાજે છે, પરમ પુરુષ સમીપે છે એમ આવે છે। ધ્રુવ ધ્રુવ તે પર્યાયની સમીપે ધ્રુવ પડ્યું છે। પર્યાય જે છે ઉત્પાદ વય વાળી ઉત્પાદ વય ધ્રુવયુક્ત સત છે ને તો ઉત્પાદ વયની પર્યાયની સમીપે ધ્રુવ છે, પણ ઉત્પાદ વયે ધ્રુવને જોયું નહીં। ઉત્પાદ વયે રાગ ને પુન ને પર ને જોવામાં રોકાઈ ગયો, કાંઈ પરને જાણવામાં રોકાઈ ગયો, પણ એ પર્યાય જાણવાની પર્યાય જાણનારને જોયો નહીં। પોતાની નિજ પર્યાય નિજ ક્ષણ છે। દરેક દ્રવ્યની તે સમયની ઉત્પત્તિના પર્યાયનો કાળ છે, એ તે કાળે તે પર્યાય પોતાથી ઉપજે છે, પૂર્વની પર્યાયથી નહીં, નિમિત્તથી નહીં, દર્ગુણથી નહીં। उत्पत्ति हो तो पर्याय की है, वस्तु की उत्पत्ति है नहीं, वस्तु तो अनादि है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग उत्पत्ति है,
तो पर्याय की उत्पत्ति है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा कहने में आता है ना, चारित्र हुआ, तो वो तो पर्याय है। वस्तु है तो अनादि है, जन्म नहीं, उत्पत्ति है नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग भी उत्पन्न होता है, पर्याय है। पर्यायમાં નવી ઉપજે, પૂર્ણ पर्याय જાય, છતાં ફેરતા तो कायम है। एक एक परमाणु में जब उसकी पर्याय का उत्पत्ति काल है तब उत्पन्न होता है। दूसरा वो पर्याय को उत्पन्न करा दे कि पूर्व की पर्याय से पछी की पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा ही नहीं। निमित्त से तो नहीं, पर वो पर्याय जो उत्पन्न हुई है, पहली पर्याय थी, उससे दूसरी हुई, ऐसे नहीं। ये समय में यहाँ पर्याय ये प्रकार है उत्पन्न होने का, जन्म नाम उत्पत्ति का काल था तो उत्पन्न हुआ है। अंदर पूर्ण चीज अंदर कोई है कि नहीं? आत्मा, आत्मा तत्व है कि नहीं? ये तत्व है, वो त्रिकाली ध्रुव है। चाहे भले वर्तमान पर्याय अवस्था पलटती हो, हलचल हो पर्याय में, पर वस्तु ध्रुव है, एમાં हलचल नहीं। हलचल नहीं अर्थात ये पलटती नहीं, અને पलटती दशा में हलचल विनानी चीज आती नहीं। उत्पाद ने ध्रुव से नो उत्पाद भाई पलटता हूं से, ध्रुव नहीं पलटता हूं से। उत्पाद उत्पाद से होता है, उत्पाद जय से नहीं, उत्पाद ध्रुव से नहीं, ध्रुव उत्पाद से नहीं, ध्रुव जय से नहीं, जय उत्पाद से नहीं। त्रिलोकना चैतन तत्व वस्तु ध्रुव 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 उत्पाद वयनी पर्यायनी पासे पड़ा समीप में। अनंत अनंत गुण का भरपूर भगवान, ये चारों और गुण ही भरे हैं, गुण ही भरे हैं। कोई शुभराग के शुभराग उसमें है नहीं। अधिकारी तत्व वर्तमान में पूर्ण है। केम के उत्पाद वही ध्रुव युक्त सत्व एक समय मात्र एक सत्य एक समय मात्र नहीं है। उत्पाद वही एक समय ની સ્થિતિ છે અને ધ્રુવ ત્રણ કાળનો રહેનારો માટે ત્રણ કાળ રે માટે ધ્રુવ છે, મને ત્રણ કાળની દ્રષ્ટિ કરવી પડે એમ નથી। સમયની પર્યાય શું ભલે વસ્તુ ના એમાં આવે, પણ એ આખું ચીજ એક ધ્રુવ સમયની એનું સામર્થ્ય જ્ઞાનમાં આવી જાય। आत्मा उत्पाद वही ध्रुव स्वरूप है। भगवान आत्मा में नई नई पर्याय उत्पन्न होती है और जूनी पर्याय का व्यय होता है और ध्रुव रूप एकांत रहते हैं। वह नित्य रहकर पलटता है। वर्तमान आत्मा की दिशा जो पलटती है, विचार पलटते हैं, ये तो अवस्था है वर्तमान दिशा, पर उसका नित्य स्थायी स्वरूप कायम रहने वाली तत्व, ये तत्व अपना गुण से खाली नहीं, आनंद गुण से भरा पड़ा प्रभु है अंदर। वस्तु भगवान आत्मा जेमा आनंद गुण वसेला रहेला छे, ये वस्तु अनादि अनंत है। ये पर्याय पलटे छे एक जुदी वस्तु है, तो वस्तु तरीके छे अनादि अनंत है। ध्रुव जे फरतु नहीं, ध्रुव शू फरे छे? वस्तु फरीने क्या जाए? ध्रुव तो सदृश रूपे कायम रहे छे, बदलातो नहीं। ध्रुव ते बदलते नहीं, बदलतो नहीं। एनी पर्याय समय बदलाय थी बदली बात। द्रव्य छे તેને તે સમયે તે અવસ્થા થાય છે, તે તેના ઉત્પત્તિના કાળથી થાય છે, નિમિત્તથી નહીં, પૂર્વની પર્યાયથી નહીં, દ્રવ્યગુણથી નહીં। कोई अंदर दुख की दशा है और आनंद प्रभु है, स्वरूप उसका आनंद है, उसकी पर्याय में दुख है, तो दुख से आप जब मुक्त हो तो पर्याय हो गई।
दुख की दशा पलट कर आनंद की पर्याय आ जाएगी तो पर्याय है। तो द्रव्य कालीन उसकी पर्याय दो हो गई। पर्याय में अक्षर का अनंतमा भाग न केवल ज्ञान नहीं तो पर्याय की बात है। निगूढ़ में अक्षर नो अनंतमा भाग विकास, केवल ज्ञान में पूर्ण विकास, पर वो तो पर्याय है। केवल ज्ञान भी पर्याय है कि तो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है ये पर्याय है, गुण नहीं। केवल ज्ञान गुण नहीं, नश्वर है, पर्याय है न, पर्याय है। एक समय की पर्याय है, दूसरे समय दूसरी होगी, तीसरे समय तीसरी होगी। वो पर्याय का काल एक समय का है और द्रव्य का काल है। लाख वात नहीं वात निश्चय आणो छोड़ी जगत द्वंद फंद द्वंद बे रूपता ने छोड़ी दे। भगवान आत्मा ध्रुव में एक गुण ध्रुव है कि जिसमें एकाग्र होने से उत्पाद ध्रुव ने कारण निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व भाव पर्याय का नाश होता है और ध्रुव का आश्रय कायम रहते हैं। दृष्टि में तीन नहीं, दृष्टि में ध्रुव एक, पर दृष्टि ध्रुव पर रहने होने से निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है और मलिन पर्याय पूर्व की है वो विवेक नाश होता है। उत्पाद ने लईने उत्पाद ध्रुव ने लईने नहीं અને તે ઉત્પાદ છે દ્રવ્યનો તે ક્ષણે જન્મનો ઉત્પત્તિ કાળ છે તે ઉત્પાદ થાય છે, આગો પાછો નહીં, દ્રવ્યને લઈને નહીં। देखो प्रश्न क्या है कि सत उत्पाद व्यय द्रव्य रूप त्रयात्मक है। इस कथन में क्या आध्यात्मिक रहस्य भरा है? उत्तर, प्रत्येक द्रव्य एक समय में अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रिस्वभाव का स्पर्श करता है। उसी समय निमित्त होने पर भी द्रव्य उनका स्पर्श नहीं करते। क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक द्रव्य अपना जो स्कोप है, मतलब जो अपना स्कोप क्या है, उत्पाद व्यय ध्रुव रूप, तो वो उसी को स्पर्श करता है और उसी समय अगर बाहर में कोई निमित्त हो या पर द्रव्य हो तो उसको स्पर्श नहीं करता। तो ये जो बात है एक्चुअली ये समय सार की गाथा 3 से लिया गया है। वहां पे आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो प्रत्येक पदार्थ अपने गुण पर्याय को स्पर्श करते हैं, चुंबन करते हैं, लेकिन वो दूसरे किसी भी पदार्थ को स्पर्श नहीं करते। इसी को गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया है कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुण पर्याय को स्पर्श करते हैं, चुंबन करते हैं, अड़ते हैं, उसमें अंतर्मग्न रहते हैं, उसमें एक में होकर रहते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, लेकिन वह दूसरे किसी द्रव्य का वो स्पर्श नहीं करते हैं। तो आप ये पूछ सकते हो कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श करे तो उसमें दिक्कत क्या है? एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को करे तो उसमें दिक्कत क्या है? देखो, अगर एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय की करे तो वो दूसरे द्रव्य की पर्याय, वो जिसका गुण की पर्याय थी, तो वो गुण तो यूजलेस हो गया, राइट? क्योंकि वो उस गुण की पर्याय तो कोई और द्रव्य कर रहा है, तो वो गुण यूजलेस हो गया। और अगर गुण यूजलेस हो गया तो वैसे ही द्रव्य तो कलेक्शन ऑफ गुण है, तो अगर गुण यूजलेस है तो फिर द्रव्य भी यूजलेस हो गया। तो ऐसा तो वस्तु का स्वरूप होता नहीं है। हर एक द्रव्य अपना खुद का उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप उसी में वो रहता है, उसका स्कोप और उसकी बाउंड्री वहीं तक है। फिर अपन देखते हैं आगे। देखो, सम्यक दर्शन हुआ, वहां आत्मा उस सम्यक दर्शन के उत्पाद को, मिथ्यात्व के व्यय को और श्रद्धा रूप अपनी ध्रुवता का स्पर्श करता है, किंतु सम्यक्त्व के निमित्तभूत ऐसे देव, गुरु या शास्त्र को स्पर्श नहीं करता। वे तो भिन्न स्वभावी पदार्थ है।
जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ किसी जीव को और मिथ्यात्व का व्यय हुआ, और वो जो श्रद्धा श्रद्धा दोनों, जब सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और मिथ्यात्व नाश हुआ, लेकिन जो दोनों ही समय में श्रद्धा तो थी ना, पहले भले उल्टी श्रद्धा हो और बाद में करेक्ट श्रद्धा हुई, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा वो ध्रुवता तो थी ना। तो वो जो उत्पाद हुआ, जो व्यय हुआ और जो ध्रुवता थी, उसी को वो आत्मा उसको स्पर्श करता है। लेकिन उसी समय बाहर में निमित्त रूप में देव गुरु या शास्त्र हो, तो वो उस द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। मतलब आत्मा उस देव गुरु या शास्त्र को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वे तो भिन्न स्वभावी पदार्थ है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो देव गुरु या शास्त्र है, उससे इस जीव का कोई भी सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर आगे, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, मिथ्यात्व का व्यय तथा श्रद्धापने की अखंडता रूप ध्रुवता, इन तीनों का आत्मा में ही समावेश होता है। मतलब इनका बाउंड्री वो आत्मा में ही है, किंतु इनके अतिरिक्त जो बाह्य निमित्त है, उनका समावेश आत्मा में नहीं होता। प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप द्रव्य का अपना स्वभाव है, और उस स्वभाव का ही प्रत्येक द्रव्य स्पर्श करता है, अर्थात अपने स्वभाव रूप ही वर्तता है। किंतु पर द्रव्य के कारण किसी के उत्पाद व्यय ध्रुव रूप नहीं है। पर द्रव्य भी उसके अपने ही उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में अनादि अनंत वर्तता है, और यह आत्मा भी अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में ही अनादि अनंत वर्तता है। मतलब दोनों द्रव्य, हर एक द्रव्य अपने अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में ही रहते हैं, उसकी बाउंड्री वहीं तक है। देखो, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अपन लौकिक में बोलते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, तो होता क्या है कि जीव चला जाता है और शरीर वहीं का वहीं रह जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जीव तो चला गया, लेकिन उसकी ज्ञान जो गुण है या ज्ञान की जो पर्याय है, वो शरीर में रह गई? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है, राइट। अच्छा, उल्टा ऐसा हो सकता है कि जो पुद्गल के जो भी परमाणु थे, वो जीव के साथ चले गए, या पुद्गल के जो गुण थे, स्पर्श रस गुण, वो आत्मा के साथ चले गए। ऐसा होता है? नहीं ना। मतलब पुद्गल का जो भी, वो उसका द्रव्य गुण पर्याय, उसका जो उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप है, वो उसमें ही रहता है। और जीव का जो, उसके जो गुण है, उसका जो उत्पाद व्यय स्वरूप ध्रुव स्वरूप है, वो उसमें ही रहता है। मतलब एक दूसरे में वो मिल नहीं जाते। भले ही वो पहले एक क्षेत्र में साथ हो, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अत्यंत भिन्न है, एक दूसरे से छूते भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करते हैं। इस प्रकार हर एक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने जो बाउंड्री है, उसी में वह रहता है। वैसे ही देखो, और एक एग्जाम्पल, जैसे हमने अगर एक डब्बी में, अब हमने शक्कर रखा है, राइट। तो क्या ऐसा कभी होता है कि शक्कर अपना स्वभाव चेंज करके सॉल्ट हो जाए? ऐसा नहीं होता, राइट। उसका जो वो नेचर है, वो उस प्रकार से ही रहता है, वो कभी अपना नेचर चेंज नहीं करता। इसीलिए जो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, जो भी वस्तु है वो वैसी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। जीव जो है वो जीव ही रहेगा। आपने कभी देखा है कि जीव कभी पुद्गल हो गया या पुद्गल कभी जीव हो गया? ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो हर एक द्रव्य अपनी अपनी जो उसकी जो स्वभाव है, उसी में वह रहता है, वो उसका नेचर चेंज करके पर रूप नहीं हो जाता है। तो ऐसा समझने वाले ज्ञानी को अपने आत्मा के उत्पाद व्यय ध्रुव के अतिरिक्त बाह्य में कोई भी कार्य किंचित मात्र अपना भासित नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी को ये पता हो गया है कि उनका जो अपना आत्मा है, वही उनका खुद का अपना है, उसी में वो अपनापन करते हैं। और बाहर के जो पदार्थ है, वो किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ऐसा उनको पता होता है, कि वो उनको किंचित मात्र भी वो अपना नहीं मानते हैं बाहर के पदार्थ को। तो इसलिए उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप अपना जो आत्मा है, उसके आश्रय से निर्मलता का ही उत्पाद होता जाता है, मलिनता का व्यय होता जाता है,
और ध्रुवता का अवलंबन बना ही रहता है। इसका नाम धर्म है। देखो, जब ज्ञानी को पता चल गया है कि हर एक वस्तु अपने अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव में ही रहता है, तो और उनको पता है कि उनका स्कोप कहाँ है, बाहर की जितनी भी वस्तु उनका स्कोप कितना है, तो फिर वो बाहर की किसी भी पदार्थ में अपनापन नहीं करते, और अपनापन नहीं करते और खुद के आप आत्मा में अपनापन करते हैं। तो मतलब बाहर में अगर कुछ भी हो जाए तो उनको ऐसा राग द्वेष का परिणाम नहीं होता। तो इसलिए उनका जो मलिनता है उसका व्यय होता है, और सिंस उनको अपने खुद का आश्रय है, तो खुद के आश्रय से उनको निर्मलता का उत्पाद होता है। और जो ध्रुवता का है वो तो अवलंबन बना ही रहता है, और इसी का नाम धर्म है। तो अभी तक हमने जो भी देखा ये उन्होंने जीव के ऊपर ये घटाया है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे अजीव द्रव्य का, कि अजीव द्रव्य भी अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप त्रिस्वभाव का स्पर्श करता है, पर का स्पर्श नहीं करता। देखो, अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मिट्टी को पिंड में, जैसे मिट्टी के पिंड में से घड़ा हुआ, वहां पिंड अवस्था का व्यय हुआ, घट अवस्था के उत्पाद को और मिट्टी पने की ध्रुवता को वह मिट्टी स्पर्श करती है, किंतु वह कुमार, चाक को, डोरी को या अन्य किसी पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। और कुमार भी हाथ के हलन चलन रूप अपनी अवस्था जो उत्पाद हुआ उस उत्पाद को स्पर्श करता है, किंतु अपने से बाह्य ऐसे घड़े को वह स्पर्श नहीं करता। देखो, यहाँ पे पुद्गल का भी कह रहे हैं कि हर एक जो पुद्गल का परमाणु है वो अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप में रहता है। देखो, स्कंद रूप से भी कई बार, स्कंद रूप से आप देखते हो कि एक स्कंद में कई सारे परमाणु होते हैं, राइट। लेकिन असल में वो हर एक परमाणु एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते, भले है स्कंद रूप से, लेकिन असल में वो एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शरीर, तो शरीर में आपने देखा होगा कि किसी को बीमारी या ऐसा कुछ हो जाए, तो कहीं एक पार्ट में पिंपल आ जाता है या कहीं एक पार्ट का स्किन कलर चेंज हो जाता है, राइट। तो मतलब उस परमाणु की वो जो अवस्था थी वो चेंज हो गई, लेकिन बाकी के जितने भी परमाणु हैं वहां की उसकी अवस्था चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार से हर एक परमाणु वो अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप को ही स्पर्श करता है, लेकिन बाकी के जितने भी परमाणु है वो उसको स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसे पुद्गल की बात है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। जगत में छह द्रव्य एक ही क्षेत्र में विद्यमान होने पर भी कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नहीं करता। अपने अपने उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप स्वभाव में ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है, इसलिए वह अपने स्वभाव को ही स्पर्श करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम एक क्षेत्र में ही, जैसे कि एक बाउल में हमने दूध भी रखा और उसी में पानी भी मिलाया, राइट। तो अभी देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों मिक्स हो गए, राइट, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वो मिक्स हो गए, ऐसा दिखता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या क्या कि जो दूध का जो क्षेत्र है, क्या वो पानी का बन गया, राइट? क्या दूध पानी बन गया? नहीं ना। जो दूध है वो दूध रूपी रहा, और जो पानी है वो पानी रूपी रहा। कैसे पता चलेगा? अगर आप उसको अग्नि से उसको गर्म करोगे तो पानी का पार्ट जो है वो उड़ जाएगा, और दूध का वैसा है ना वैसा रहेगा, राइट। अगर मिक्स हो गया होता, अगर वो एक में हो गया होता, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था, राइट। तो मतलब हर एक द्रव्य, वो भले आपको लगता है कि एक क्षेत्र में विद्यमान हो, लेकिन वो अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप को ही स्पर्श करता है, दूसरे को, दूसरे पदार्थ को स्पर्श नहीं करता। और एक एग्जाम्पल, जैसे अपन सिद्ध दशा में देखते हैं, तो सिद्ध गति में जैसे समय शिखर जी, तो समय शिखर जी से कई सारे जीव मोक्ष गए। तो अगर अपन ऐसे सोचे तो वहां की जो ऊपर जो अवस्था है वो ऐसा अपन सोच सकते हैं कि बहुत सारे क्राउडेड है, राइट, बहुत सारे जीव वहां पे है, और निगोद के जीव भी वहां पे है। तो क्या एक एक जीव, जैसे कि सिद्ध भगवान के कोई भी जीव, उनको अनंत सुख है, और निगोद के जीव को अनंत दुख है, तो क्या एक की पर्याय दूसरे में चली जाती है? नहीं, राइट।
भले ही एक क्षेत्र में इतने सारे जीव है, लेकिन एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होता है। सिद्ध भगवान को अनंत सुख है, निगोद के जीव को अनंत दुख है। तो इस प्रकार से भले ही एक क्षेत्र में हो, लेकिन वह अपने उत्पाद व्यय ध्रुव रूप में ही रहते हैं, अपने स्वभाव में ही रहते हैं, और पर में कुछ उनका हस्तक्षेप नहीं है। वैसे ही आप लोक में कौन सी भी एक क्षेत्र ले लो, तो हर एक क्षेत्र में लोक में आपको आकाश द्रव्य है, आकाश के कौन से भी क्षेत्र में धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, काल द्रव्य है, और पूरे लोक में ठसोठस जीव द्रव्य भरे हुए हैं। तो जीव द्रव्य भी है और परमाणु भी है। तो छहों द्रव्य एक क्षेत्र में विद्यमान होने पर भी क्या कभी आपने देखा है कि पुद्गल द्रव्य जीव रूप हो गया हो, ये जीव पुद्गल रूप हो गया हो? हर एक द्रव्य अपना अपना जो स्वभाव है, वो उसी में वो रहते हैं और उसी को स्पर्श करते हैं, दूसरे रूप वह नहीं हो जाते। तो इस प्रकार आप देखो कि जब वो एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों को स्पर्श भी नहीं करते, तो फिर वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे वो उसको कुछ आ, आप फेरफार कर सकता है? नहीं कर सकता है, राइट? व्हेन इट्स नॉट इवन टचिंग अनदर द्रव्य, तो फिर उसमें फेरफार करना कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जो हमारी जो ऐसी बुद्धि होती है कि ये मैं कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं परद्रव्य का ऐसा चेंज कर लूं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वेन यू नॉट इवन, आत्मा जो है वो परद्रव्य को छूता भी नहीं है, तो फिर वो उसमें चेंजेस कैसे लाएगा? देखो आगे, ये सर्वज्ञ देव कथित वीतरागी भेद ज्ञान, निमित्त उपादान का स्पष्टीकरण भी इसमें आ जाता है। उपादान और निमित्त, ये दोनों पदार्थ एक साथ प्रवर्तमान होने पर भी उपादान रूप पदार्थ अपने उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप स्वभाव का ही स्पर्श करता है, निमित्त का किंचित भी स्पर्श नहीं करता। और निमित्त भूत पदार्थ भी उसके अपने उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप स्वभाव का ही स्पर्श करता है, उपादान का वह किंचित स्पर्श नहीं करता। उपादान और निमित्त दोनों पृथक पृथक अपने अपने स्वभाव में ही वर्तते हैं, परिणमन करते हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे ये कहने का भाव आ रहा है, राइट? तो ये जो कहने का भाव आ रहा है वो क्या है? वो जीव द्रव्य की पर्याय है, राइट? लेकिन जो भाषा जो परिणमित हो रही है, वो भाषा पुद्गल द्रव्य का परिणमन है। तो मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म नहीं है। तो ये जो भाषा है वो स्वतंत्र रूप से चल रही है, और जो जीव के परिणाम हो रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमने भाव किए होते कुछ बोलने के लिए, लेकिन निकल जाता है कुछ और। या हमने सोचा था कि हम ऐसे बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पाते, राइट? तो ये सब क्या है? तो यही बताता है कि उपादान जो है, वो उपादान जो है वो उसके उत्पाद व्यय ध्रुवता स्वरूप में ही है, और उसके कारण से वो पर में कुछ कर नहीं सकता। जो वाणी है, वो वाणी के परमाणु उसके स्वतंत्र उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप से वो चल रहे हैं। देखो अभी अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते हैं, तो गुरुदेव श्री तो अभी उनका जीव तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाणी है। तो तो वह वाणी स्वतंत्र रूप से उसका उत्पाद व्यय ध्रुव रूप चल रहा है, इसलिए अपन आ, वो वाणी चलती है, भले ही यहाँ पे अभी वो जीव नहीं हो। तो वो हर एक द्रव्य इस प्रकार अपने स्वतंत्र रूप से वह अपने ही उत्पाद व्यय ध्रुवता रूप को स्पर्श करता है, लेकिन पर को नहीं करता। देखो फिर आगे, अहो पदार्थों का यह उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव भली भांति पहचान ले, तो भेद ज्ञान होकर स्वद्रव्य के ही आश्रय से निर्मल पर्याय का उत्पाद और मलिनता का व्यय हो, उसका नाम धर्म है, और वही सर्वज्ञ भगवान के सर्व उपदेश का तात्पर्य है। क्या कह रहे हैं? कि अगर हमने ये जान लिया कि ये जो वस्तु का जो स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने देखा है इसलिए वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा भगवान के ज्ञान में झलका है। तो वस्तु का स्वरूप, नेचर ऑफ थिंग्स इज ओनली लाइक दैट, कि हर एक पदार्थ अपने उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव में है। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड इट,
तो फिर ये जो दया का भाव आता है कि मैं पर को उनका सुधार लूं, उनका अच्छा कर लूं, क्योंकि नॉर्मली जीव अशुभ भाव से तो बच लेता है, लेकिन शुभ भाव ऐसा आता है कि दया कर लूं, ये कर लूं, किसी का अच्छा कर लूं। तो ये जब हमको ख्याल में आएगा कि नहीं, हर एक द्रव्य अपने उत्पाद व्यय द्रव्य में ही समाहित है, वो पर में नहीं कर सकता, उसको पर्श को स्पर्श भी नहीं करता, तो वो पर की सुख गुण की पर्याय कैसे उत्पन्न करा दे, राग द्वेष जो है वो उसको कैसे मिटा दे, जब when it is not even touching the other द्रव्य, तो वो उसकी पर्याय को कैसे बदला दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार जब वो उसकी बाउंड्री पता चल जाए, तो फिर सबसे पहले तो वो पर के साथ जो एकत्व बुद्धि है कि वो पर और मैं एक हूँ, फिर ममत्व है कि वो मेरा है, फिर कर्तृत्व बुद्धि जो है कि मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, या भोक्तृत्व बुद्धि है कि मैं पर को भोग सकता हूँ, ये चारों ये चारों का नाश प्राप्त होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच वो अत्यंत अभाव है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसको अपने स्वद्रव्य के ऊपर से अपने जो आत्मा है, अपने जो जीव द्रव्य है, उस पे उसमें उसको अपनापन आता है, और फिर वो उसको जैसे अपने में अपनापन आता है और पर में फेरफार करने की बुद्धि चली जाती है, तो इस प्रकार उसका मलिनता का व्यय होता है और फिर निर्मल पर्याय का उत्पाद होता है। और सर्वज्ञ भगवान का यही सर्व उपदेश का तात्पर्य है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी जीव अभी सिद्ध गए हैं, वे सब भेद ज्ञान करके ही गए हैं, और जो भी जीव अभी तक मोक्ष नहीं गया है, वो भेद ज्ञान के अभाव से ही नहीं गया है। तो मतलब ये भेद ज्ञान करना इतना इम्पोर्टेंट है कि अपनी बाउंड्री कहाँ तक है, पर की बाउंड्री कहाँ तक है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ये सब समझ के हमें, ये वस्तु का स्वरूप समझ के ये हमें एक बार समझ में आ जाए, तो ऑटोमेटिक हमें सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। हमें उत्पाद करना नहीं है, उत्पाद तो स्वतंत्र रूप से होता है पर्याय का। तो लेकिन जब हमें ये पता चल जाए, तो स्वतंत्र रूप से वो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पाद हो जाएगी, जब हम वस्तु का स्वरूप पहचान लेंगे। और हमने जो शुरुआत में बात की थी कि ध्रुव पर दृष्टि, मतलब जब ये उत्पाद व्यय जो चल रहा है, पर में तो अपन कुछ कर नहीं सकते, बराबर, और अपने में भी ये जो उत्पाद व्यय चल रहा है, उससे दृष्टि हटाकर जब अपन ध्रुव के ऊपर जो दृष्टि करेंगे, जो कांस्टेंट है, जो त्रिकाली है, जो परिपूर्ण है, जो शुद्ध है, उसके ऊपर दृष्टि करेंगे, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। देखो, गुरुदेव है ना, ऐसा बोलते हैं कि जो देखने वाले है ना, उसको दृष्टा ही रख, उसको हाय हाय करने वाला ना बना। मतलब हाय हाय ऐसा कैसे हो गया, हाय हाय ये नहीं होना चाहिए, हाय 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 ये ऐसा ही होना चाहिए। तो मतलब ये जो हमें जो आकुलता होती है ना कि नहीं, मुझे इस बाहर के वस्तु का परिणमन को चेंज करना है, वो वो बुद्धि चली जानी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तू देखने वाला है तो खुद को दृष्टा ही रख, हाय हाय करने वाला ना बनो। फिर ऐसा दृष्टा स्वभाव की प्रतीति, मतलब उसकी ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रतीति, ऐसी फीलिंग में लाना दृष्टा स्वभाव की, तो उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, कि दृष्टा स्वभाव की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। तो यही हमने ये क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में अभी ये डिस्कस किया है। तो हमें बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में भी अभी यही करना है कि हम भेद ज्ञान करें। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अ, खाने खाने की क्रिया हो रही हो, तो हमें ऐसा भेद ज्ञान चलना चाहिए कि खाने खाने का भाव हो रहा है, वो जीव में हो रहा है। फिर ऐसा नहीं है कि वो जो पदार्थ है, समझो लड्डू खा रहे, तो लड्डू जीभ को जीभ में रखा तो इसलिए वो आ, उसका स्वाद आया, नहीं। ज्ञान की जो पर्याय है उस समय, वो उस समय ऐसे ही उत्पन्न होने वाली थी कि वो जाने,
इस मिठास को। और ऐसा नहीं है कि वो लड्डू वो टंग को टच कर रहा है, नहीं, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रहा है। वो लड्डू की जो परमाणु है वो उसमें है, जीभ के परमाणु उसमें है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं। इस प्रकार समय सारणी में ऐसा आता है कि क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि वह स्वतंत्र, हर एक पदार्थ अपने उत्पाद व्यय द्रव्य रूप में रहता है और वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, इसीलिए जो जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया में वो टिकी हुई है। वरना ऐसा होता कि अगर स्पर्श करे, एक वस्तु दूसरे वस्तु को स्पर्श करे तो वो एक हो जाए, और एक हो जाए तो वस्तु का ही नाश हो जाए, और वस्तु का नाश हो जाए तो ऐसे तो पूरी दुनिया का नाश हो जाए, क्योंकि विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं, राइट? तो मतलब सभी द्रव्यों का नाश हो जाए तो मतलब विश्व का ही नाश हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए जो समय सारणी में ऐसा आया है कि इसलिए ये जो वस्तु की जो स्वभाव है और ये जो उसका जो पूरा सेटअप है, ये सुंदर है, वस्तु की व्यवस्था सुंदर है, इसलिए हर एक पदार्थ टिका हुआ है, किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार हमें बेसिकली ये समझकर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये इसकी श्रद्धा करके भेद ज्ञान करना है। हाँ, हर समय जो हमारी अनादि की ये एकत्व बुद्धि जो चलती है कि मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, या ये जो फेरफार करने की बुद्धि रहती है वो हमें अ, तोड़ना चाहिए। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन नंबर 62 देखा। अब हम जिन्वानी स्तुति लेंगे। तो निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। बोलो श्री वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। सिमंदर आदि 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान नो जय हो। कुंद कुंद आदि महंत आचार्य देव नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी एवं श्री काहन गुरुदेव नो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सनातन नित्य दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र।